Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samia Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to deliver a lecture on reliability and its types, which is related to psychological testing. It takes only 10 to 15 minutes to complete a lecture. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, what is reliability? When you do quantitative research, you have to consider the reliability and validity of your research methods and instruments of measurement. Reliability tells how consistently a method measures something. When you apply the same method to the same sample under the same conditions, you should get the same results. If not, the method of measurement may be unreliable. There are four main types of reliability. First of all, test-retest reliability. Second one is inter-rater reliability. Third one is parallel form and last one is internal consistency. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रिलायबिलिटी की बात करते हैं मींस आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कंसिस्टेंसी ऑफ आइटम्स जो कि आपके टेस्ट आइटम्स हैं. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप क्या करेंगे, रिसर्च मेथड को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी रिसर्च करने वाले हैं. देन आपका रिसर्च मेथड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिलायबिलिटी को पहले मेजर करेंगे. देन आप किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स वैलिडिटी. तो टेस्ट रिटर्स रिलायबिलिटी मेजर द सेम टेस्ट ओवर टाइम. Then inter-rater reliability, the same test conducted by different people. Then parallel form is different version of a test which are designed to be equivalent. Then internal consistency related to the individual item of a test. First of all, test-retest reliability. Test-retest reliability measures the consistency of result when you repeat the same test on the same sample at different point in time. You use it when you are measuring something that you expect to say consistent in your sample. For example, a test of color blindness for a trainee pilot applicant should have high test reliability because color blindness is a trait that does not change over time. जब आप बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की, मींस आप एक पर्टिकुलर फिनोमेना या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मेजर करने वाले हैं ओवर टाइम. तो आप कुछ इस तरह की ट्रेट या इस तरह की कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट रहेंगी. फॉर एग्जांपल अगर आप कलर ब्लाइंडनेस की बात करें कि आप जो ट्रेनी पायलट एप्लीकेंट्स हैं उन पे आप ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो वो क्या है, वो ट्रेट सेम रहेगी. लेकिन कुछ इस तरह की ट्रेड्स हो सकती हैं जो ओवर टाइम चेंज हो सकती हैं. तो हम उनको मेजर करने के लिए जो रिलायबिलिटी चेक कर रहे होंगे वो होगी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. So why it's important? Many factors can influence your result at different points in time. For example, respondent might experience different moods or external conditions might affect their ability to respond accurately. Test retest reliability can be used to assess how well a method resists these factors over time. The smaller the difference between the two sets of results, the higher the test retest reliability. अब बेसिकली जो टेस्ट रिटर्न रिलायबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों यूज़ कर, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च में यूज़ करने के लिए, तो हम इसका क्या हमारे लिए कोई क्या बेनिफिट पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसका जो बेसिक एक पॉइंट है वो ये है कि आप कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हो सकती हैं, डिफरेंट मूड्स हो सकते हैं जो कि उस पर्सन के उस टाइम पे सही नहीं है या वो उस पर इफेक्ट कर रहे हैं. देन आप उसको ओवर टाइम चेक करेंगे कि हो सकता है कि वो उस टाइम पे उसके मूड स्विंग्स की वजह से ये एक्सटर्नल कंडीशन, कुछ टेम्परेचर ऐसा हो सकता है, रूम की लाइट इस तरह की हो सकती है जिसकी वजह से उस टाइम पे उसने उसको आंसर सही तरह से नहीं किया. लेकिन ओवर टाइम आप उसको चेक कर सकते हैं कि जब आप उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद चेक कर रहे हैं देन उसका इफेक्ट उस पर क्या आ रहा है. हो सकता है देन तब उस जो आपका रिस्पोंडेंट है जिससे आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसका उस टाइम पे ये चीज़ सब चीज़ें इफेक्ट ना कर रही. Then here come how to measure it, how we can measure test retest reliability. To measure test retest reliability, you conduct the same test on the same group of people at two different points in time. Then you calculate the correlation between the two sets of results. For example, you devise a questionnaire to measure the IQ of a group participant. Unlikely to change significantly over time. You administer the test 2 months apart to the same group of people, but the results are significantly different, so the test retest reliability of the IQ questionnaire is low. अब फॉर एग्जांपल आपने एक IQ मेजर है वो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से फिल करवा रहे हैं. आपने पहले एक सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल आपकी 4th सेमेस्टर का एंड है, उसमें आपने जब आप फाइनल से पहले आपसे किसी ने क्वेश्चनर फिल कराया है ऑन IQ. देन उसके बाद आप 5th सेमेस्टर में आ गए, देन आपसे दोबारा एडमिनिस्टर करवाया. तो अगर उसके सेम स्कोर नहीं होंगे मीन्स उस टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो लो है. लेकिन अगर उसके सेम उस टाइम पे जो रिजल्ट है वही दोबारा 2 मंथ्स अगो होंगे तो क्या है कि वो उसकी उस टेस्ट की रिलायबिलिटी वो क्या हाई है. Then how to improve test retest reliability? When designing test or questionnaires,
Try to formulate questions, statements and tasks in a way that won't be influenced by mood or concentration of participant. When planning your method of data collection, try to minimize the influence of external factors and make sure all samples are tested under the same condition. Then remember that changes can be expected to occur in participant over time and take these into account. The second one is inter-rater reliability. Inter-rater reliability measures the degree of agreement between different people observing or assessing the same thing. You use it when data is collected by researchers assigning ratings, scores or categories to one or more variables. For example, in an observational study where a team of researchers collect data on classroom behavior, inter-rater reliability is important. All the researchers should agree on how to categorize or rate different types of behavior. अब जब हम इंटर-रेटर रिलायबिलिटी की बात करते हैं, मीन्स हम रिलायबिलिटी को चेक करने वाले हैं एक ही पर्सन की जो डाटा है उसको 2% चेक करें. फॉर एग्जांपल आपका पेपर जो है पहले एक फर्स्ट एग्जामिनी उसको चेक कर रहा है, देन उसको रीचेक बाय सेकंड एग्जामिनी. तो इसमें अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, तो जो तमाम रिसर्चर्स हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो क्या मेजर कर रहे हैं, क्लासरूम बिहेवियर, तो उन सबको एक ही पॉइंट पे एग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मीन्स उसमें इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाई इट्स इंपॉर्टेंट? People are subjective, so different observer perception of situation and phenomena are naturally different. Reliable research aims to minimize subjectivity as much as possible so that different researchers could replicate the same results. अब ये किस लिए ज़रूरी है कि जो different individual होते हैं उनकी perception क्या है वो different है, लेकिन on a particular situation, on a particular object, on a particular individual उनकी perception same होनी चाहिए according to particular phenomena. जिस भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, क्लासरूम बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए इंटर-रेटर रिलायबिलिटी किस लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो है तमाम जो लोगों की परसेप्शन है वो होना पर्टिकुलर फिनोमेना सेम है. When designing the scale and criteria for data collection, it is important to make sure that different people will rate the same variable when minimal biases. This is especially important when there are multiple researchers involved in data collection or analysis. Here's come how to measure the inter-rater reliability. To measure inter-rater reliability, different researchers conduct the same measurement or observation on the same sample. Then you calculate the correlation between these different sets of results. If all the researchers give similar rating, the test has higher inter-rater reliability. अब फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं, उसकी हम ट्रांसलेटेड वर्जन यूज़ करते हैं, तो हम उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए भी पहले जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, देन उसको हम किसी और पैनल के साइकोलॉजिस्ट से या किसी प्रोफेसर से चेक करवाते हैं. तो उसमें क्या है कि हम इंटर-रेटर रिलायबिलिटी को मेजर कर रहे हैं कि हम किसी एक परसेप्शन पे नहीं चल रहे कि इसकी जो एग्जैक्ट इसकी ट्रांसलेशन है वो ये हो सकती है, तो उसको हम चेक करें ऑन इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. Then a team of researchers observe the progress of wound healing in patient. They record the stage of healing. Rating scale are used with the set of criteria to assess various aspects of wounds. The results of different researches assessing the same set of participants patients are compared and there is a strong correlation between all sets of results, so the test has higher inter-rater reliability. अब फॉर एग्जांपल कि एक रिसर्च है वो किस पे हो रही है, वाउंड हीलिंग इन पेशेंट, तो उस पर जो हम उसकी स्टेजेस को रिकॉर्ड करें कि कितनी रेटिंग स्केल पर एक टाइम पीरियड के बाद वो वाउंड हीलिंग हो रही है, तो उस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो रिसर्चर हैं उनका ओपिनियन लेंगे कि उनके अकॉर्डिंग जो है इन स्टेजेस से गुजर के कितने टाइम पीरियड में वो एक पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा है. देन हाउ टू इम्प्रूव इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. जब आप किसी रिसर्च की बात करते हैं, आपने उसमें इंटर-रेटर रिलायबिलिटी को मेजर करना है, चेक करना है, तो हम उसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं. हम जो हमारा पर्टिकुलर टेस्ट है जिसको हम मेजर करने वाले हैं, जिसके जरिए से हम किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को चेक करने वाले हैं, तो उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. क्लियरली डिफाइन योर वेरिएबल्स एंड द मेथड दैट विल बी यूज्ड टू मेजर देम. Then develop detailed objective criteria for how the variables will be rated, counted or categorized. अब जब हम बात करते हैं कि हम किसी भी फिनोमिना को मेजर करने वाले हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज करेंगे अदर देन सब्जेक्टिव. तो उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, तो वो उनको ऑब्जर्व करना, उनको परसीव करना डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा ईजी होता है. तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने इंटर-रेटर रिलायबिलिटी को मेजर करना है, तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्राइटेरिया जो है वो पहले अपना डिफाइन कर लेंगे. इफ मल्टीपल रिसर्चर आर इन्वॉल्व, इंश्योर दैट दे आल हैव एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग. और जितने भी इंडिविजुअल इंटर-रेटर रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए होंगे, जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी ट्रेनिंग और उसका क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, ताकि जो है उसमें किसी भी किस्म की बायसनेस ना आए.
Then the third type is parallel form reliability. Parallel form reliability measures the correlation between two equivalent versions of a test. You use it when you have two different assessment tool or set of questions designed to measure the same thing. अब जैसे टेस्ट रिलायबिलिटी मीन्स हम एक ही टेस्ट को ओवर टाइम यूज करें, मीन उसको 2 बार यूज करें. तो पैरेलल फॉर्म उसके ऑपोजिट है कि हम जो है एक ही टाइम पे क्या करें, 2 डिफरेंट उसके वर्जन से एक ही चीज को पर्टिकुलर बिहेवियर, फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए हम 2 इन्वेंटरी पर्सनालिटी की यूज करें जो कि 2 डिफरेंट पर्सन ने है जो है उसको डिवेलप किया है. उससे क्या होगा कि हम ये देख सकेंगे कि पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए हो सकता है कि उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज, अच्छे फैक्टर जिससे हम असेस कर पाए वो हमारे पास वर्जन मौजूद हो. Why it's important? If you want to use multiple different versions of a test, for example to avoid respondent repeating the same answer from memory, you first need to make sure that all the sets of questions or measurement give reliable results. In educational assessment, it is often necessary to create different versions of a test to ensure that students don't have access to question in advance. Parallel form reliability means that if the same student take 2 different versions of a reading comprehensive test, they should get similar results in both tests. अब उसमें हम क्या करेंगे कि किस तरह से हम उनको चेक कर सकते हैं कि एक कम्प्रीहेंसिव जो टेस्ट है उसको हम 2 फॉर्म में 2 वर्जन में चेक करेंगे ताकि उसमें किसी किस्म की बायसनेस ना आए. हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने वो टेस्ट जो है पहले से ही किसी और ने उसे वो फिल करवाया हो तो उसको ऑलरेडी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए उसमें बायसनेस का चांस ना हो. तो हम क्या करेंगे, उसी सेम पर्टिकुलर फिनोमेना से रिलेटेड कोई और वर्जन यूज करेंगे. Then how to measure it? The most common way to measure parallel form reliability is to procedure a large set of questions to evaluate the same thing. Then divided these randomly into 2 question sets. The same group of respondents answered both tests and you calculate the correlation between the results. High correlation between the two indicates high parallel form reliability. For example, a set of questions is formulated to measure financial risk. A version of a group of respondents, the questions are randomly divided into 2 tests and the respondents are randomly divided into 2 groups. अब उसमें ज़्यादा बायसनेस ना आए तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 वर्जन यूज़ करेंगे. देन जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, बैंक एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकता है, क्लिनिकल पेशेंट से रिलेटेड हो सकता है. तो उसको क्या करेंगे, हम रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड भी कर देंगे ताकि मजीद जो बायसनेस है उसका चांस या उसका एरर का चांस कम से कम हो जाए. Both groups take both tests. Group A takes test first, then Group B takes test B first. The results of 2 tests are compared and the results are almost identical, indicating high parallel form reliability. Then हम A और Group के B के जो results हैं उनको compare करेंगे कि ये इन 2 वर्जन पे उनके क्या टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं. देन उसके बाद अगर वो सेम होंगे तो ऑलमोस्ट हम क्या कहेंगे, इट्स आइडेंटिकल एंड इंडिकेटिंग हाई पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. Then how to improve parallel form reliability in questionnaires or in a test or in a instruments? Ensure that all question or test items are based on the same theory and formulated to measure the same thing. अब उसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हम पर्टिकुलर फिनोमेना मेजर करने वाले हैं, हम पर्सनालिटी को मेजर करने वाले हैं, हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट उसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, तो वो क्या है वो सेम थ्योरी पे बेस कर रही हूँ ताकि उसमें किसी किस्म की जो है, अब ये ना हो कि पर्सनालिटी की एक जो चीज़ है वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट की तरफ जो है उसको मेजर कर रही हो, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को देन एक एक्सट्रोवर्ट को मेजर कर रही हो. तो मीन्स कि वो क्या कर रही हूँ कि वो सेम उसकी डायरेक्शन हो, सेम थ्योरी पे बेस कर रही हूँ. तो हम उससे क्या करेंगे कि सेम थिंग जो है मीन्स पर्सनालिटी उसको हम मेजर कर सकते हैं. Then the last one is internal consistency. Internal consistency assesses the correlation between multiple items in a test that are intended to measure the same construct. You can calculate internal consistency without repeating the test or involving other researches. So it's good way of assessing reliability when you only have one data set. अब हमने जब बात की टेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, तो हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट टेस्ट को अप्लाई करें ओवर टाइम. उसमें क्या है कि एक टाइम पीरियड हमें रिक्वायर्ड है कि हम उस रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं. लेकिन इंटरनल कंसिस्टेंसी की जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें कोई इस तरह ओवर टाइम किसी भी कंस्ट्रक्ट या किसी भी डाटा को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन कैलकुलेट इंटरनल कंसिस्टेंसी विदाउट रिपीटिंग द टेस्ट और इन्वॉल्विंग अदर रिसर्चेस. सो इट्स गुड टू वे एक्सेसिंग रिलायबिलिटी व्हेन यू ओनली हैव वन डाटा सेट. जब आपके पास एक ही डाटा सेट है और आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप इस रिलायबिलिटी को इंटरनल कंसिस्टेंसी के जरिए से चेक कर सकते हैं. Why it's important? When you devise a set of questions or rating that will be combined into an overall score, you have to make sure that all of items really do reflect the same thing.
If responses to difficult items contradict one another, the test might be unreliable. To measure customer satisfaction with an online store, you could create a questionnaire with a set of statements that respondent must agree or disagree with. Internal consistency tell you whether the statements are reliable indicators of customer satisfaction. अब फॉर एग्जांपल हम मेजर करने वाले हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो ऑनलाइन जो आपका एक टेस्ट है उसके ज़रिए से हम ये मेजर कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए रिलायबल हैं. मीन्स आपकी अपनी इसमें परसेप्शन भी इन्वॉल्व है. देन हाउ टू मेजर इट. टू कॉमन मेथड्स आर यूज टू मेजर इंटरनल कंसिस्टेंसी. फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन डाटा से ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा के ले रहे हैं. देन हम इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं. Average inter-item correlation. For a set of measures designed to assess the same construct, you calculate the correlation between the results of all possible pairs of items and then calculate the average. Then split half reliability is a type of internal consistency. You randomly split a set of measures into two sets. After testing the entire set on the respondent, you calculate the correlation between the two sets of responses. अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप उसका split half reliability में convert कर सकते हैं. मीन्स एक ही क्वेश्चनर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. For example, a group of respondents are presented with a set of statements designed to measure optimistic and pessimistic mindset. They must rate their agreement with each statement on a scale from 1 to 5, means on 5-point Likert scale. If the test is internal constant, an optimistic respondent should generally give high rating to optimistic indicators and low rating on pessimistic indicators. The correlation is calculated between all the responses to the optimistic statements, but the correlation is very weak. This suggests that the test has low internal consistency. अब मीन्स हम रिस्पोंडेंट से क्या करवाना चाह रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक अप्रोच चेक कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक की जो रेटिंग है उसको अलग करेंगे. मीन्स उसका स्प्लिट हाफ कर रहे हैं. पेसिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक अप्रोच को अलग जो उसमें सेट में कन्वर्ट करके देन हम उसे रिस्पोंडेंट से चेक करवा रहे हैं. Then how to improve internal consistency. Take care when devising question or measures. Two intending to reflect the same concept should be based on the same theory and carefully formulated. अब वो क्या वो सेम जिस तरह पैरेलल फॉर्म ने कहा कि सेम थ्योरी पे बेस कर रहा है और हम उसको फॉर्मुलेट सही तरह से करें. मीन अगर उसको स्प्लिट हाफ में कन्वर्ट करें तो इक्वली या उसकी मैयर्स के अकॉर्डिंग या उस फिनोमिना या एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में हम कन्वर्ट करें. एट द लास्ट, विच टाइप ऑफ रिलायबिलिटी अप्लाइज टू माई रिसर्च. अब ये क्वेश्चन है कि हम कौन सी टाइप ऑफ रिलायबिलिटी को अपनी रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहा है. इट डिपेंड ऑन योर रिसर्च डिजाइन, your analyzing of data and your writing of your research. It is important to consider reliability when planning your research design, collecting and analyzing your data and writing of your research. The type of reliability you should calculate depends on the type of research and your methodology. कि basically आपकी type of research क्या है. आप quantitative research करें, आप qualitative research करें, then आप methodology कौन सी यूज़ करें, आप questionnaire यूज़ करें, आप interview method यूज़ करें या आप experiment conduct करवा रहे हैं. तो basically आपकी जो reliability है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाटा की रिलायबिलिटी को चेक करेंगे. अपनी जो रेटिंग स्केल है या इंस्ट्रूमेंट है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के बाद आप जो है पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क. थैंक यू सो मच.